ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم الامین اما بعد۔ یہ کسی بھائی کا مسئلہ ہے کورٹ میرج کے حوالے سے، کہتے ہیں کورٹ میرج جائز ہے۔ تو اس پورے ان کے آڈیو کلپ میں 4 باتیں ہیں، وہ میں آپ کو چاروں پوائنٹ بتا دیتا ہوں، پھر مسئلے کی وضاحت کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں نمبر 1، مسئلہ واضح ہے کہ کورٹ میرج جائز ہے۔ نمبر 2، وہ کہتے ہیں فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اچھا جی۔ نمبر 3، وہ کہتے ہیں کہ ولی کی شرط ہی باطل ہے، نکاح کے اندر ولی کی شرط ہی سرے سے باطل ہے۔ اور نمبر 4، کہتے ہیں کہ جو بھاگ کر لڑکیاں نکاح کرتی ہیں، عدالت میں جا کر کورٹ میرج کرتی ہیں، اس نکاح کے باطل ہونے کی شرعی کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو اب میں کوشش کرتا ہوں کہ مولوی صاحب کو شرعی دلائل بیان کیے جائیں۔ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح ہے۔ ایک منٹ کتاب کھول لوں ذرا میں۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح۔ اس میں وہ باب قائم کرتے ہیں، باب من قال لا نکاح الا بولی، کہتے ہیں کہ نکاح ولی کے بغیر نہیں ہوتا۔ یہ امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، اور یہ ہے سنن ابی داود۔ اس کا نمبر ہے انٹرنیشنل نمبر 2085۔ تو 2085 پر یہ حدیث ہے۔ امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ حدیث لائے، ان ابی بردۃ عن ابی موسیٰ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا نکاح الا بولی۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح ولی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی بالفرض نکاح کر لے، اگر کوئی خاتون، کوئی عورت، کوئی مرد گھر سے بھاگ کر کورٹ میرج کر لیں، عدالت میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اپنی مرضی سے ولی کے بغیر نکاح کر لیں، تو یہ جناب حدیث ہے ابو داود کے اندر، حدیث نمبر ہے 2084۔ یہ 2084 انٹرنیشنل نمبر ہے، ذرا یاد رکھیں۔ کیا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان عروۃ عن عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن موالیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل۔ مسلمانوں کی امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی عورت ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کر لے تو اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ یہ فرمانے والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ ترمذی کا دوسرا امام ترمذی کے اندر امام ترمذی حوالہ حدیث لائے ہیں، یہ حدیث نمبر ہے 11001، جامع ترمذی ہے، 11001 نمبر ہے۔ اس میں حدیث ہے ان ابی اسحاق ان ابی بردۃ عن ابی موسیٰ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاح الا بولی۔ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ وفی الباب عن عائشہ وابن عباس وابی ہریرہ وعمران بن حسین وانس۔ کہتے ہیں اس باب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی حدیث مروی ہے، ابن عباس سے بھی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے، و عمران بن حسین سے بھی ہے،
اور सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से भी मरवी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, वली के बगैर निकाह नहीं होता। अच्छा जी, और ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह की 11002 नंबर हदीस है, 11002 नंबर हदीस। इसमें फिर वही हदीस है अन उर्वता अन आयशा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अय्युम्मा इम्रअतिन नुकिहत बिगैर इज़्नि वलिय्यिहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई औरत निकाह कर ले बग़ैर इज़्न वलिय्यिहा, अपने वली की इजाज़त के बग़ैर, फ़निकाहुहा बातिलुन, तो उसका निकाह बातिल है, फ़निकाहुहा बातिलुन, उसका निकाह बातिल है, फ़निकाहुहा बातिलुन, उसका निकाह बातिल है। ये अल्फाज तिरमिज़ी के पढ़ के सुना रहा हूँ, ज़रा मौका मिले तो पढ़ के देख लेना, हदीस निकाल के देख लेना, इसीलिए मैंने नंबर बता दिया है। और ये इब्ने माजा है, सुनन इब्ने माजा, इसका नंबर है 1881। इसमें हदीस है क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। और जनाब ये इब्ने माजा से भी आपको हदीस पढ़ के सुना देता हूँ, वही हदीस उसी तरह की हदीस है। ये सुनन इब्ने माजा है, इसका इंटरनेशनल नंबर है 1879, यानी 1 कम 80। हदीस क्या है? अन आयशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इम्रअतिन लम युनकिहा अल-वलिय्यु फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। ये इब्ने माजा के अंदर हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर कोई खातून निकाह कर ले वली की इजाज़त के बग़ैर तो उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है, उसका निकाह बातिल है। ये कहने वाले कौन हैं? ये मोहतरम कहने वाले मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अब ये सुनन दारमी है, सुनन दारमी का हदीस नंबर है 2228 नंबर। इसको पढ़िए। अन अबी बुरदाता अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह नहीं होता। और ये आखिर में मुस्नद अहमद पढ़ के सुनाता हूँ। ये मुस्नद अहमद है, शेखुल इस्लाम इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की हदीस की किताब। इसका नंबर है 19710। तो इसमें हदीस क्या है? अन अबी बुरदाता अन अबीही क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला निकाह इल्ला बिवलिय्यिन, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। मोहतरम, ये हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान और सहाबा के फतावे। अब मौलवी साहब कहते हैं कि कोर्ट मैरिज के बातिल होने की कोई दलील शरई मौजूद नहीं है, तो आप इस मौलवी साहब से पूछ कर मुझे ये बता दें कि ये शरीयत कहते किसको है, ये दलील शरई मानते किसको हैं। ये तो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान आलीशान जो मैंने सुनाए हैं। अगर इनके नज़दीक ये शरीयत नहीं है, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्ने माजा, सुनन दारमी, मुस्नद अहमद, अगर ये हदीस की किताबें और ये आइमा मुहद्दिसीन इनके नज़दीक दलील नहीं है, तो आप मेहरबानी करके उनसे पूछ कर मुझे बता दें कि उनके नज़दीक दलील शरई किस चीज़ का नाम है। अब दो ही गिरोह हैं मेरे भाई, वाज़े बात है। एक गिरोह वो है जिनका निकाह वली की इजाज़त के बग़ैर नहीं होता। किन का नहीं होता?
जिन्होंने मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी और रसूल मानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक उनका निकाह नहीं होता। और जिनका कोर्ट मैरिज हो जाता है, जायज़ है, भाई उनकी शरीयत क्या है वो बता दें अपनी शरीयत बता दें, अपना शारे बता दें और शरीयत की किताबें बता दें ताकि हमें भी पता चल जाए। बहरहाल किताब व सुन्नत से, कुरान और हदीस से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, ताबईन से, मुहद्दिसीन से, आइम्मा से यही बात साबित है कि वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं होता। हाँ, अलबत्ता अगर बच्ची पर, औरत पर वली ज़्यादती करता है तो औरत को ये हक़ हासिल है कि अपना वली बदल सकती है। दूसरी बात ये भी अर्ज़ कर दूँ कि वली बच्ची, औरत, खातून की मर्ज़ी के बगैर उसका निकाह नहीं कर सकता और बच्ची, खातून बगैर वली की इजाज़त के अपना निकाह नहीं कर सकती। ये बात याद रखें, ये लाज़िम व मलज़ूम है दोनों चीज़ें, ये दोनों मशरूत हैं। निकाह उसका वली करेगा और करेगा बच्ची की मर्ज़ी के मुताबिक, मगर बच्ची को, बेटी को, बहन को, खातून को ये हक़ इस्लाम नहीं देता कि वो पहले किसी मर्द को पसंद करके आ जाए, उसके साथ ताल्लुकात कायम कर ले और फिर वालिदैन को मजबूर करना शुरू कर दे कि मेरे इसके साथ निकाह कर दो। इसकी इजाज़त नहीं देता। वालिदैन रिश्ता तय करेंगे और बच्ची की मर्ज़ी से तय करेंगे, बच्ची की रज़ा मालूम करके उसका निकाह करेंगे। ये वालिदैन पाबंद हैं, तो ज़्यादती वालिदैन भी नहीं कर सकते और घर से भाग के निकाह बच्ची नहीं कर सकती, खा वो कुंवारी हो, खा वो रंडवी हो, खा बेवा हो, खा मुतलका हो। कोई भी औरत, जिसे औरत कहा जाता है, औरत अपना निकाह खुद नहीं कर सकती, उसकी वली औरत नहीं बन सकती, उसका वली उसका मर्द बनेगा। जो फ़हरिस्त मौलवी साहब ने बयान कर दी है उनमें से कोई भी वली हो सकता है, वली को बदला जा सकता है। बहरहाल वली की इजाज़त से निकाह होगा, वली की इजाज़त के बगैर निकाह नहीं हो सकता। अगर कोई कोर्ट मैरिज करती है तो ये बातिल है, बातिल है, बातिल है और ये दलील शरई हैं जो मैंने आप हजरात के गोश गुजार कर दी हैं। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हक़ समझकर मानने और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम।